All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. So I will share the screen. So today we will discuss the basic introduction of the class regarding the ADC subject. ADC subject is the analog and digital communication, fourth semester electronics and communication engineering. So during this introduction class, we have to just introduce the various units we have to cover in this syllabus. Okay. So first one unit we have to cover in the next classes. So that will be include the AM and FM. Actually, the AM is the amplitude modulation. This is covered in the unit number second. Unit first is the introduction, objective, scope, and outcome of the particular course. Okay, and so the unit first is related to the second one, serial number second. That include the review of the signal and system, frequency domain representation of the signal, principle of amplitude modulation system, where the amplitude modulation system are the basic three types: double sideband, single sideband, and Westinghouse sideband modulation schemes. Next part is the angle modulation. Angle modulation will cover the frequency modulation and the phase modulation signal and spectral characteristics of the angle modulated signal. So basically, and that will be covered in the 8 lectures. Okay. So basically the unit first is indicate the how many types of signal and systems are present for the analog and digital communication. So this one basically represent the how many types of signals and system are using to define the analog as well as the digital communication system. So firstly, we have to study about the analog communication system. So the analog communication system basically divided into the two parts. First one is the amplitude modulation and the second one part is the angle modulation. Okay, जैसे इस यूनिट में इंडिकेट है. So first one section is represent the amplitude modulation. Okay, and the second one part is related to the angle modulation. Okay, amplitude modulation is covered the various type of modulation technique. Modulation technique कौन कौन सी ली है इसने? Double sideband, single sideband and VSB, Westinghouse sideband modulation technique. ये अपन आगे स्टडी करेंगे. Second one part is the angle modulation. Angle modulation basically divided into the two parts. Angle modulation basically divided into the two parts, frequency modulation and the phase modulation. FM is the frequency modulation, PM is the phase modulation. Okay, so just observe that when we draw the sinusoidal signal, just imagine that when we draw the sinusoidal signal, for example sine t, for example when we draw the sine t, that represent the sinusoidal signal. And for this sinusoidal signal there are the basic three parameters. First one parameter is amplitude. Okay, second one parameter is frequency, and the third one parameter is the phase. Okay, जब भी अपन किसी सिग्नल को प्लॉट करें, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, किसी भी साइनोसोइडल सिग्नल को अपन प्लॉट करें, so there are the basic three components are present in that the particular signal. For example, जैसे अपन लें कोई सिग्नल अपन प्लॉट करें tan sin थीटा या tan sin थीटा, जैसे अपन ले लिए 30 डिग्री, tan sin 30 डिग्री, तो tan तो एक्चुअली क्या हुआ उसका एम्पलीट्यूड, और थीटा किससे रिलेटेड हुआ? उसके फ्रीक्वेंसी और फेज से रिलेटेड. सो एज अकॉर्डिंग टू द गिवन एनालॉग सिग्नल, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारे सिग्नल कौन से सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल है. डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं? जो 0 1 की फॉर्मेशन में है.
एनालॉग सिग्नल कौन से हैं? जो साइन, कोसाइन, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक सिग्नल की फॉर्मेशन, कंटिन्यूअस सिग्नल कंसीडर करते हैं। सो इन केस ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन, तो पहले अपन स्टडी किसकी करेंगे इसमें? एनालॉग कम्युनिकेशन. So analog communication basically related to the analog signal, and there are the basic three parameters for the analog signal: amplitude, phase and frequency. So इन तीन पैरामीटर के रेस्पेक्टिवली अपन एनालॉग कम्युनिकेशन को डिवाइड करा. So first one part is the amplitude modulation, that is related to amplitude parameter. Okay. Second one part is the angle mode. Angle is related to the frequency and phase. Angle, this one angle is related to the frequency and the phase. So the angle modulation is, the angle communication is related to the frequency modulation and the phase modulation. तो ये अपन आगे और स्टडी करेंगे जब मैं फर्दर आपको चैप्टर अपन आगे स्टडी करेंगे क्लासेस में. नेक्स्ट यूनिट इज रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम एक्सेस, that include the Gaussian and white noise characteristics, noise in amplitude modulation system, noise in frequency modulation system, pre-emphasis, de-emphasis, threshold effect, and the effect in the angle modulation. So next one part, the next one unit is related to the how noise is introduced in the analog communication system, and what are the effect of the noises in case of analog communication system. So we have to study about the noise effect in amplitude modulation system. Okay. Next, the effect of the noise in frequency and the phase amplitude modulation system. So that unit will cover the effect of noise and the what are the consequences, what are the outcome will present when the noise will be introduced in the analog communication system. ये दो यूनिट जो शुरू किए हैं ये किससे रिलेटेड हैं? एनालॉग से. The first one is the analog, how many types of analog communication system. दूसरी नेक्स्ट यूनिट किससे रिलेटेड है? The what are the effect of the noises in analog communication system, मतलब नॉइज के अफेक्टेड के अपन स्टडी करेंगे. ओके. अब इसके नेक्स्ट वाली यूनिट इंटरेस्टिंग है. The next one part is the pulse modulation. Third one is the pulse modulation communication system or the techniques which introduce the sampling process, pulse amplitude, pulse code modulation, differential pulse code modulation, delta modulation, noise consideration in PCM, TDM and digital multiplexer. So the third one, next part क्या है कि जैसे फर्स्ट में अपन ने एनालॉग कम्युनिकेशन की स्टडी करी, नेक्स्ट वाले सेक्शन में, hello, is this audible to all? Yes sir. Okay, ठीक है. तो shall we continue? Okay. Yes sir. Okay, so next one section is related to the, क्योंकि जैसे अपन ने एनालॉग कम्युनिकेशन की स्टडी करी, afterward we have to go to the analog to digital. Please mute your mics. Okay. Mute your mics. किसका माइक म्यूट नहीं है? म्यूट करो बेटा. Okay. So next one unit is introduced क्योंकि basically subject is divided. सबके करते हैं. किसका माइक म्यूट नहीं है बेटा? म्यूट करो. मुस्कान कुमारी, मुस्कान, म्यूट योर माइक्स. Muskan, mute your mic. Okay. So basically the total syllabus of ADC subject is divided into the two sections, analog communication and the digital communication. Analog communication, that means we have to consider the analog signal, है ना, continuous signal, time signal और analog signal. Okay. Next one section क्या है? Digital communication. So digital communication will be started from this one unit. यहाँ से digital communication के अपन starting करेंगे.
फर्स्ट दो यूनिट है दैट इज रिलेटेड टू एनालॉग कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज द थर्ड वन, पीसीएम इज रिलेटेड टू द डिजिटल कम्युनिकेशन. तो इसको अपन स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली इसको अपन इस तरह से समझें, एनालॉग कम्युनिकेशन इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल कम्युनिकेशन. ठीक है, कोई एनालॉग सिग्नल है जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है ना, कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है. सो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अपन को किसमें कन्वर्ट करना है, 0-1 की फॉर्म में. डिजिटल सिग्नल कौन से होंगे जिसमें 0-1 की फॉर्मेशन आएगी. ओके, सो द एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल. तो उनकी जो मीडिएटर टर्म रहेगी, क्योंकि होता क्या है प्रोसेस जब अपन करते हैं, एनालॉग को डिजिटल में डायरेक्टली अपन कन्वर्ट नहीं करते. तो एनालॉग को किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले एनालॉग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द डिस्क्रीट सिग्नल, not digital. Okay, so firstly analog signal is converted into the discrete signal, and the discrete signal is converted into the digital signal. Okay, so this one unit is related to the analog signal is converted into the discrete signal. So there are the various techniques that are known as the pulse modulation, and the which one process are using to convert the analog signal into discrete signal, that is known as the sampling process. Much more important process to conversion from analog to digital. ये बहुत important process है बेटा. Sampling process is responsible to convert the analog to discrete, और डिस्क्रीट के बाद अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल सिग्नल में. ओके, सो इन दिस यूनिट वी हैव टू स्टडी अबाउट द पल्स मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन. वेयर क्या करेंगे, इन विच द कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू द डिस्क्रीट सिग्नल एंड आफ्टरवर्ड कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट फोर्थ यूनिट, वी हैव टू स्टडी अबाउट द वेरियस शिफ्ट कीइंग प्रोसेस or various process, various method to transmission of the digital signal. अब अपन ने क्या करा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि जब अपन कम्युनिकेशन करें, फॉर कम्युनिकेशन जैसे आपके घर से कॉलेज की तरफ कम्युनिकेशन करना है ना, तो कम्युनिकेशन अपन कैसे करेंगे, फ्री स्पेस में या फ्री चैनल में, फ्री मीडियम में ना, फ्री स्पेस में अपन कम्युनिकेशन करें. तो आपका जैसे घर तो क्या हो गया, बेसिकली जस्ट लाइक ए ट्रांसमीटर. कॉलेज क्या हो गया, जस्ट लाइक ए रिसीवर. ओके, सो दैट कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. सो टू ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर वी हैव टू यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ मेथड, और टेक्निकली अपन इसको क्या बोलते हैं, कीइंग मेथड. जैसे फेज शिफ्ट कीइंग मेथड हो गया, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मेथड हो गया. तो बाय यूजिंग द पर्टिकुलर कीइंग मेथड या और मॉड्यूलेशन प्रोसेस स्कीम, we have to transmit the digital signal, not analog. यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिट 5th में डिजिटल के ना. So we have to talking about the digital signal is transmitted from the transmitter to receiver by using the various keying techniques. Is it clear? ये यूनिट 4th में अपन स्टडी करेंगे. And the last one is the digital modulation trade-off, which is in which we have to study about the optimum demodulation of the signal. मतलब we have to, जैसे मॉड्यूलेशन कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल, जैसे ट्रांसमीटर सेक्शन पे अपन क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन, रिसीवर सेक्शन पे उसका उल्टा क्या करेंगे, डिमॉड्यूलेशन. तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द वेरियस डिमॉड्यूलेशन टेक्निक, डिटेक्शन टेक्निक फॉर द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक. ये वाली यूनिट्स में अपन इन प्रोसेस की स्टडी करेंगे. ओके, सो टोटल अपन ने टोटल सिलेबस में अपन ने क्या स्टडी करेंगे, अपन सबसे पहले एनालॉग कम्युनिकेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन, वेरियस मेथड टू जनरेट मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन. ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे डिस्क्रीट सिग्नल, जिसमें अपन कौन सा आएगा, पीसीएम आएगा, ये वाली यूनिट, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये वाली स्टडी करेंगे. आफ्टरवर्ड वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, various keying method or modulation scheme, and after that demodulation process. Okay, so let us start the unit first one section. First is the unit for the review of the various type of signal and systems. Okay, so just study the
फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ सिग्नल इज द एनर्जी सिग्नल एंड द पावर सिग्नल। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे इसमें वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी सिग्नल एंड द पावर सिग्नल। अब एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला वाइज। फॉर्मूले से अपन किसी पर्टिकुलर सिग्नल की एनर्जी और पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, सो दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जो बच्चे गेट की तैयारी करते हैं ना फाइनल ईयर में, उनके लिए मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। कई बार ये गेट के एग्जाम में पुट ऑन होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है और इनके कंसेप्ट अपने को क्लियर होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज द एनर्जी सिग्नल। ए सिग्नल विद फाइनाइट एनर्जी इज नोन एज द एनर्जी सिग्नल। अगर इसकी फाइनाइट एनर्जी है और पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का, लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, gt is the particular signal, so mod of the gt square dt should be less than infinite। ये एनर्जी आ गया, एनर्जी का ये फॉर्मूला रहेगा। और एनर्जी शुड भी क्या रहनी चाहिए, लेस देन इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगी तो अपन उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो फॉर द फाइनाइट एनर्जी इट शुड बी लेस देन इनफाइनाइट। इट शुड बी लेस देन इनफाइनाइट, दैट मींस इट शुड बी ए फाइनाइट फॉर्मेशन, फाइनाइट फॉर्म में हो। ओके, so that the first one formula is related to the energy of the particular signal g of t। सिग्नल कौन सा यहाँ पे g of t है, इस फॉर्मूले को पुट ऑन करा और डिटरमाइन क्या कर दिया अपन ने, एनर्जी। अब बाय द वे उस सिग्नल का है कि उसका पावर कैलकुलेट कर, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, द पावर विल बी, नेक्स्ट वाला फॉर्म, पावर विल बी बिटवीन द 0 टू इनफाइनाइट, द पावर इन बिटवीन द 0 to infinite, that means the power should be also in finite form, है ना। ये फाइनाइट है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में, that means the finite formation। पर फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ है इसमें कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/t माइनस t/2 से प्लस t/2 gt स्क्वायर मॉड ऑफ gt स्क्वायर इनटू d of t, that means power pg in between 0 to infinite, that means it is a mean squared value of g of t। अब ये जो फॉर्मूला होता है ना इसका पावर का, दैट को अपन इसको टेक्निकली डिफाइन करें तो दैट इज द टाइम एवरेज। टाइम एवरेज कैसे हुआ कि 1/t माइनस t/2 से लेके प्लस के t/2। अब अपने 12th में भी इसकी स्टडी करी होगी, जैसे आपने देखे होंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अपन निकालते थे या मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। सो बेसिकली पावर एक्चुअली क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू। पावर इज द मीन स्क्वायर वैल्यू। पावर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू से। अगर बाय द वे अपन इसका अंडर रूट ले लें, पावर का अंडर रूट ले लें, तो ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। इसके फॉर्मूले से क्या इंडिकेट हो रहा है, दैट द फॉर्मूला विल रिप्रेजेंट इट इज ए टाइम एवरेज और द मीन स्क्वायर वैल्यू। टाइम एवरेज कहें या इसको क्या कहें, मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका अंडर रूट लें तो क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो एनर्जी का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और पावर के लिए ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, and these formula should be remember। okay, अब बाय द वे जी ऑफ टी सिग्नल अगर वोल्टेज सिग्नल है तो एनर्जी की यूनिट क्या रहेगी, वोल्टेज स्क्वायर इनटू सेकेंड। अगर वो करंट है तो उसके करंट के रेस्पेक्टिव रहेगी। अगर जी ऑफ टी अगर कोई पावर सिग्नल है तो पावर की वैल्यू क्या रहेगी, वी स्क्वायर रहेगी। कोई अगर करंट सिग्नल है तो पावर कितना रहेगा, एम्पियर। एम्पियर का क्या होगा, स्क्वायर। वी क्या है, वोल्ट, ए क्या है, एम्पियर। वोल्टेज सिग्नल है तो वोल्ट आएगा, करंट सिग्नल है तो कौन सा आएगा, एम्पियर आएगा। इज इट क्लियर। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। बाय द वे कोई सिग्नल है वो कौन सा है, डीसी सिग्नल है ना, या कांस्टेंट सिग्नल एम्पलीट्यूड जिसका क्या है, सी है। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का कोई सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, सी है, या डीसी सिग्नल है, उस केस में अगर अपन उसकी पावर या एनर्जी कैलकुलेट करें तो पावर क्या आएगी उस केस में, सी स्क्वायर। यानी जो उसका एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल when we consider a DC signal just like a 10 volt, just like a DC signal consider is a 10 volt and determine the power of the DC signal 10 volt, how much power will be generated by the DC signal। so the power in this case will be the 10 volt है तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। so the power will be the 100 volt। okay, नेक्स्ट अपन आगे स्टडी करते हैं कि इफ द जी ऑफ टी, अब जैसे जी ऑफ टी यहाँ पे तो अपन क्या ले रहे थे, इट इज ए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। नेक्स्ट वाले केस में अगर अपन कंसीडर करें जैसे समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट सी एन कॉस ओमेगा एन टी प्लस थीटा है,
बाय द वे जो जी ऑफ टी सिग्नल है वो किस फॉर्म में आ गया, डिस्क्रीट फॉर्म में। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना जी ऑफ टी का, दैट रिप्रेजेंट द डिस्क्रीट फॉर्मेशन। डिस्क्रीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, कंटिन्यूअस नहीं है। एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये सारे जो वैल्यूज किसका रिप्रेजेंटेशन में आएगी, डिस्क्रीट की फॉर्मेशन में। अब इसके अपन पावर कैलकुलेट करना चाहें तो पावर कैसे आएगा, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया सी स्क्वायर था, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है, सी एन कॉस थीटा है, कॉस का कोई सिग्नल है, एम्पलीट्यूड क्या है, सी एन है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, सी एन का स्क्वायर। और ये डिस्क्रीट फॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज द समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ पे ये 1/2 कैसे आया भाई, यहाँ जैसे अपन ले रहे थे डीसी सिग्नल था तो कोई 1/2 नहीं था, पर इन केस में 1/2 कैसे आया। तो 1/2 अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब भी कोई साइनोसोडल सिग्नल है, दैट मीन इट मे बी इन साइनोसोडल की फॉर्म में हो, कोसाइन की फॉर्म में हो, टेंजेंट की फॉर्म में हो, तो जब भी अपन इन सारे सिग्नल्स का अपन पावर या कैलकुलेट या टाइम एवरेज कैलकुलेट करें, ये वाली चीज यहाँ अपन इसका जब टाइम एवरेज या टाइम एवरेज एक्चुअली किससे रिलेटेड है, पावर से। तो जब भी किसी साइनोसोडल सिग्नल कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, जब भी अपन साइनोसोडल सिग्नल के अपन कोई भी पावर कैलकुलेट करें या टाइम एवरेज निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/2। तो ये कॉस वाली टर्म की जो है ना टाइम एवरेज वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 1/2। ये हमेशा याद रखना। तो जब अपन आगे एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम स्टडी करेंगे तो वहां ये बहुत काम आएगा। सो इट पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट द पावर ऑफ कोसाइन सिग्नल, साइन सिग्नल, इट शुड बी 1/2 ऑलवेज। और ये Cn जो डीसी सिग्नल है उसके रेस्पेक्टिव Cn स्क्वायर आ गया। ओके, नेक्स्ट इज द some conclusion are present here. If the energy of the signal is finite then its power is 0. अगर कोई सिग्नल फाइनेट है, इसकी एनर्जी अगर अपन फाइनेट कर दें तो उसका टाइम एवरेज लें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इफ सिग्नल कैन नॉट, इफ द सिग्नल हैज ए फाइनेट पावर देन एनर्जी विल बी इनफाइनेट। अगर ये फाइनेट है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इनफाइनेट, क्योंकि वहां लिमिट कितनी आ रही है, लिमिट कैसे ले रहे हैं, माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट। और ये अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है तो अपन इनफाइनेट तक ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनेट। ठीक है, नेक्स्ट इज द ए सिग्नल कैन नॉट बी बोथ एन एनर्जी सिग्नल एज वेल एज पावर सिग्नल। एवरी सिग्नल प्रैक्टिकली इज एन एनर्जी सिग्नल। ठीक है, ये थोड़े बहुत कंक्लूजन है जो अपने को याद रखने चाहिए। अब बाय द वे रैंप सिग्नल अपन कंसीडर करें, रैंप की फॉर्म में अपन सिग्नल कंसीडर करें तो रैंप सिग्नल नाइदर एनर्जी सिग्नल और नॉर पावर सिग्नल। The define is the r tau equals to 1/2 pi minus infinite to infinite gf e raised to power j omega tau d tau। इसको अपन आइडेंटिफाई करें, that put the tau equals to 0, that is known as the autocorrelation। Fourier transform of this one is equals to autocorrelation, is also technically known as the power spectral density, known as the power spectral density। और अपन इसको आगे स्टडी करेंगे। Next is the communication system. So firstly classify the various type of signal and basic जो अपन ने देख लिया कि एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल होते हैं। अब अपन कम्युनिकेशन सिस्टम के रेस्पेक्टिव सिग्नल को अपन डिफरेंशिएट करें, कम्युनिकेशन सिस्टम के रेस्पेक्टिव अपन सिग्नल्स को डिफरेंशिएट करें तो कौन कौन सी फॉर्मेशन आएगी। फर्स्ट वन आएगा एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये एक्चुअली एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है वो किसके रेस्पेक्टिव अपन डिफाइन करते हैं, वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिव। दो एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस दैट मींस द if the continuous signal analog signal, if the 0 1 की फॉर्मेशन है that is the digital signal। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल है दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा है, जो टाइम के रेस्पेक्टिव, टी के रेस्पेक्टिव रहेगा। एक्स एक्सिस बेसिकली किससे रिलेटेड रहेगा, टाइम टी के रेस्पेक्टिव। तो इफ द टी इज वेरिएबल, जैसे 1 सेकंड में कोई सिग्नल ट्रांसमिट करा, 2 सेकंड में कोई दूसरा सिग्नल ट्रांसमिट करा, 3 सेकंड में तीसरा सिग्नल ट्रांसमिट करा, तो ये सिग्नल कौन से हैं, डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, और किसके रेस्पेक्टिव चेंज हो रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्टिव। और टाइम एक्चुअली किस एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। एम्पलीट्यूड किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी सिग्नल अपन जब ड्रॉ करते हैं ना तो वाई एक्सिस पे तो क्या आएगा, एम्पलीट्यूड, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम। जैसे साइन टी है
साइन टी सिग्नल बनाया ना अपन, तो एक्स एक्सिस पे तो क्या आएगा, साइन एम्पलीट्यूड आएगा साइन सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और सॉरी वाई एक्सिस पे तो क्या आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा उसका टाइम, साइन टी है तो टी के रेस्पेक्टिव, या साइन थीटा ले तो थीटा में क्या आएगा 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो एक्स एक्सिस बेसिकली रिलेटेड टू द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वन सेक्शन इज द पीरियोडिक सिग्नल एंड द अपीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। ये आप वैसे 12th में और स्टडी कर चुके होंगे। पीरियोडिक सिग्नल दैट मींस द पर्टिकुलर सिग्नल विल बी जनरेट और आउट एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी, पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी के बाद वो सिग्नल दोबारा क्या होना चाहिए, सेम जनरेट हो, सेम ओरिजिनेट हो। सो द फॉर एग्जांपल अब इसके जैसे रिप्रेजेंटेशन में अपन बताएं तो जी ऑफ टी जैसे लिया, जी ऑफ टी इक्वल्स टू जी ऑफ टी प्लस प्लस माइनस टी जीरो, तो टी जीरो बेसिकली क्या है, टाइम पीरियड है, तो टी जीरो टाइम पीरियड के बाद वो दोबारा सिग्नल जनरेट होगा, फिर 2t0 के बाद दोबारा से जनरेट होगा, 3t0 के बाद दोबारा तीसरी बार जनरेट होगा। So the t0 is the time period of the periodic signal. Periodic signal that means the signal will be periodically generated, है ना, t0 पर जनरेट हुआ, 2t0 पर जनरेट हुआ, फिर दोबारा 3t0 पर जनरेट हुआ, that is known as the periodic signal. A periodic signal that means not a periodic signal are known as the aperiodic signal. अब by the way the signal is considered is the g of equals to t minus 4, that t minus 4 is the delay by the 4 time, t plus 4 को अपन कैसे करेंगे, एडवांस by the 4 time, मल्टीप्लीकेशन हो by the way जैसे 2 into t है, जैसे g of t ये सिग्नल था इस फॉर्मेशन में था, वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, दोबारा जनरेट नहीं हो रहा, तो ये कौन सा सिग्नल है, नॉन पीरियोडिक है। एम्पलीट्यूड इसका कितना है, 2 है, 2 वोल्ट है, टाइम कितना है, -2 से लेके 4 तक, है ना, टाइम पीरियड क्या है इसका, -2 से लेके 4 तक, एम्पलीट्यूड क्या है इसका, 2 है, जी ऑफ टी। बाय द वे इसको अपन डबल करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, जी इंटू टी ऑफ टी, दैट मीन द कंप्रेस बाय द 1/2। तो कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस कैसे हुआ इसके, एम्पलीट्यूड से, तो कंप्रेस कैसे करें तो 2 डिवाइड बाय 2 क्या बन गया, ये 1, 4 का कितना हो गया 2, -2 का क्या हो गया -1, ओके, तो दैट इज कंप्रेस्ड बाय द 1/2। अच्छा, 3 टाइप्स के सिग्नल्स हो गए। नेक्स्ट 4th टाइप का सिग्नल कौन सा है, रैंडम सिग्नल एंड डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। तो डिटरमिनिस्टिक सिग्नल इज नोन डिफाइंड एज द whose behavior is known in terms of graphical form, मतलब कोई भी सिग्नल है अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने को पता है कि जैसे कोई सिग्नल गिवन है, साइनोसोडल सिग्नल में है, कोसाइन सिग्नल में है, टेंजेंट सिग्नल में है, रैम्प सिग्नल में है, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में है, तो दैट्स आर नोन एज, मतलब जिसका ग्राफिकल फॉर्म अपने को पता है, दैट्स आर नोन एज द डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। रैंडम सिग्नल जिसका अपन ग्राफिकल फॉर्मेशन अपने को पता नहीं, तो whose behavior is not identified in terms of graphical form. फॉर एग्जाम्पल जैसे रैंडम क्या है, नॉइज है, नॉइज का कोई ग्राफिकल फॉर्मेशन नहीं है, so that's the noise are known as the random signal, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने को पता है, नहीं पता रहेगा उस केस में that's known as the random signal। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो अपन कम्युनिकेशन की स्टडी करेंगे बेटा, तो सबसे बेसिक जो चीज है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए स्पेशली, सो वी हैव टू नो अबाउट द Fourier transform. The Fourier transform should be know about the analysis of the कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब किसी भी जब भी अपन कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम है, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो उस केस में फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ मच मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू एनालाइज द पर्टिकुलर सिग्नल एंड द सिस्टम। अब जैसे इसको ऐसे समझो, प्रैक्टिकली जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, स्पेक्ट्रम से, है ना, जैसे 2G 3G 4G, अब 5G आएगा आने वाले टाइम में, तो ये पर्टिकुलरली अपन किस पे डिफाइन कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम से, है ना, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, ओके। स्पेक्ट्रम क्या है एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी पैरामीटर है स्पेक्ट्रम, ओके। अब आपने अपने घरों में जैसे देखा हो या मोबाइल में देखा है कि वी
सो द जैसे कोई AM बैंड है, FM बैंड है, या जैसे रेडियो सिटी या रेडियो मिर्ची अपन FM सुनते हैं ना, जयपुर में, चित्तौड़ में, अजमेर में. So basically the FM and AM both are related to the frequency term. जब अपन frequency को change करते हैं, frequency को change करते हैं ना, उसके बाद ही particular band change होगा. When we change the frequency, the station will be changed from radio city to radio mirchi. रेडियो मिर्ची के बाद दूसरा स्टेशन चेंज हो जाएगा. तो ओवरऑल अपन स्टडी करें कि सारा का सारा जो एनालिसिस है कम्युनिकेशन का, AM, FM और ये आगे डिजिटल कम्युनिकेशन या सैटेलाइट या रेडार कम्युनिकेशन है, तो ओवरऑल बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी टर्म्स पे. बात है समझे? सारा का सारा एनालिसिस किस पे है? फ्रीक्वेंसी पे. ठीक है, क्योंकि दो ही पैरामीटर हो सकते हैं, या तो वो टाइम पे एनालिसिस है या फ्रीक्वेंसी पे एनालिसिस है. तो सारा का सारा एनालिसिस अपन किस पे कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पे एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, UHF बैंड, VHF बैंड. जैसे टीवी में अपन देखते हैं, सोनी का अलग फ्रीक्वेंसी बैंड है, GTV का अलग फ्रीक्वेंसी बैंड है, और जैसे डिश टीवी जो अपन लगाते हैं ना, डिश टीवी में वो सारा का सारा अपन किससे एलोकेटेड करते हैं? फ्रीक्वेंसी. तो अल्टीमेटली सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है वो किससे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी से. कंक्लूजन ये है, समझने वाली बात बेटा. तो और जो अपना सिग्नल जो अपना प्रेजेंट रहता है, प्रैक्टिकली जो सिग्नल प्रेजेंट रहता है वो किस में रहता है? टी में. जैसे G है ना, जो सिग्नल अपन बनाए, या साइन का बनाए, कोसाइन का बनाए, जो प्रैक्टिकल सिग्नल है वो किस में है? टी में. टी क्या है? टाइम डोमेन. ठीक है. स्पेक्ट्रम किस में है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में. तो पर्टिकुलरली टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है, जिससे अपन कम्युनिकेशन का स्टडी कर सकें. समझ रहे हो मेरी बात? सो the process or the approach where we are using to convert from time domain to frequency domain. Time domain से frequency domain में जाने का केवल एक ही तरीका है, that's are known as the Fourier transform. So Fourier transform is much more important to convert the domain from time domain to frequency domain. अब ये इनके फॉर्मूले देखो आप. G क्या है? T किस में है? टाइम डोमेन में. कन्वर्ट किस में कर दिया? कैपिटल G ओमेगा. ओमेगा एक्चुअली क्या है? 2πf. ओमेगा इक्वल्स टू 2πf. तो ओमेगा 2πf दैट इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन. सो कन्वर्जन फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला. सो द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज मच मोर इंपॉर्टेंट टू कन्वर्जन फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन. So that is the Fourier transform is much more important. अब next जो ऊपर वाला फॉर्मूला है G of ये वाला है, तो जैसे G of ओमेगा इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट G of t e raised to power माइनस की j ओमेगा t dt. That is the Fourier transform. इसका इन्वर्सिबल करें तो इनवर्स Fourier transform क्या आएगा? G of t इधर आएगा, G of ओमेगा इधर जाएगा, 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट G of ओमेगा e raised to power j ओमेगा t d ओमेगा. So first one formula is the Fourier transform, second one formula is the inverse Fourier transform. G of omega क्या है? फ्रीक्वेंसी डोमेन. G of t क्या है? टाइम डोमेन. तो ये अपने को इस तरह से इसकी स्टडी करनी चाहिए. तो अब आई थिंक आज इतना बहुत है, बाकी अपन और आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो इसका बेसिक स्टडी हो गई सिग्नल्स की और इनके टाइप्स की. अभी किसी को कोई डाउट्स या कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो. ठीक है. बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करनी है, इसके लिए मैं बुक्स आपको बता देता हूं. बुक्स आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो. बुक्स इसमें अपन स्टडी करेंगे BP लाठी, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, नोट डाउन कर सकते हो आप. ठीक है. BP लाठी, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट है जॉर्ज कैनेडी. जॉर्ज, सेकंड वन इज द जॉर्ज कैनेडी, और ये है TMH पब्लिकेशन. तो मेन तो ये दो बुक्स हैं जो रेफरेंस बुक्स हैं, है ना, जो मैं आपको इन बुक से ही स्टडी करवाऊंगा. अब इन दोनों बुक्स को लेना क्यों जरूरी है कि बेसिकली एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही मच मोर इम्पोर्टेंट बुक्स हैं. जो जॉर्ज कैनेडी है उससे अपन थियोरेटिकल कंसेप्ट अपने क्लियर करेंगे, और मैथमेटिकल एनालिसिस है वो अपन करेंगे BP लाठी से क्लियरिफाई हुआ. तो इसलिए जो थियोरेटिकल
and the practical or mathematical analysis we have both are introduced to study of the analog and digital communication. तो ये 2 बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो रेफरेंस बुक है। इसके अलावा और दूसरी जो बुक्स अपन ले सकते हैं, जैसे संजय शर्मा है, तो उसको भी अपन कंसीडर कर सकते हैं। पर बाकी ये बीपी लाठी और जॉर्ज कैनेडी तो अपने को परचेज ही करनी है, अपने पास ही रखनी है। लॉन्ग टर्म अपने ईसी स्टूडेंट के लिए तो मच मोर इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ये होनी ही चाहिए अपने पास। ठीक है, तो ये बुक्स आप चाहो तो लाइब्रेरी से या जैसे भी आप चाहो उसको इशू करवा सकते हो, है ना, या कॉलेज में आके जो ई बुक्स हैं उससे भी अपन डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलेज में आके ई बुक्स हैं, ई बुक्स का दे रखा है लिंक, उससे भी अपन इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर पढ़ना इन्हीं बुक से, अच्छी बुक से पढ़ना है, अच्छे अपने कंसेप्ट क्लियर होते तभी। तो आई थिंक जो मैंने आज अपने को स्टडी इसकी स्टार्टिंग करवा दी है, आगे आपको कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूअस लेक्चर अटेंड करने हैं। कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और तुम्हारा जो भी शेड्यूल होगा वो मैं गूगल क्लासरूम पर ही डालूंगा। तो गूगल क्लासरूम पे सभी बच्चे जरूर कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ। चलो ठीक है, मैं अटेंडेंस लेता हूं अभी, है ना। अटेंडेंस में सभी अपना बताना। आरू नामा, प्रेजेंट सर। अनुजा, प्रेजेंट सर। कर्नेल सिंह, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सन्नी, यस सर। मुस्कान, यस सर। नील कुमावत, प्रेजेंट सर। ओके ठीक है ना बेटा। तो तुम, है ना, लेक्चर स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है, और अपनी ब्रांच से मच मोर रिलेटेड है ये सब्जेक्ट, है ना। एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन अपनी ब्रांच जो ईसी ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो जो कम्युनिकेशन वाला है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट मच मोर इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी डाउट लगे, कोई भी इशू आए, तुम मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बुक्स जरूर अपने पास अवेलेबल करवा लो। बुक्स ये अपने पास रखनी है, बीपी लाठी और जॉर्ज कैनेडी, और ईसी वाले बच्चे ऑलवेज इन बुक्स को परचेज करके ही रखते हैं अपने पास। मैंने भी अपने टाइम इनको बुक्स को परचेज करके ही रखा हुआ है। यूं नहीं कि अपन मार्केट गए और कुछ किराए पे ले लिया या सॉफ्ट कॉपी ले ली, इससे बढ़िया रहता है कुछ बुक्स को अपने को रखना चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म अपने काम आएंगी ये बुक्स, है ना। अपनी ब्रांच से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आगे भी अपन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे इंजीनियरिंग के बाद, तो उस केस में भी ये बुक्स अपने को काम आएंगी, है ना। तो इन बुक्स को आप अवेलेबल करवा लो, और इन बुक्स के रेस्पेक्टिव ही मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। जैसे बीपी लाठी वाले सेक्शन, जो बीपी लाठी बुक्स है ना, वो मच मोर इम्पोर्टेंट है। मतलब चाहे गेट की तैयारी करो आप, चाहे अपनी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो उस केस में ये काम आएगी। तो मैं इसी बुक से आपको पढ़ाऊंगा, और कोई इशू आता, कोई दिक्कत आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ठीक है, ओके।